you know, when a woman starts believing in herself, when she does what she wants to do, when she says, "This is me," I think that is what perfect Miss India would be, you know. Perfect Miss of India. Hello everyone, good evening. Okay, so there was a time when I was a model too. I was Miss Maharashtra, and that time I couldn't talk on the stage because I was very, very scared to face the audience. And that's how my journey became. And then I became a cheerleader for Kolkata Knight Riders. I'm the first Indian cheerleader in history in India. Oh, wow. So I was with Kolkata Knight Riders. After me, there were Pune, Kolkata, everybody else. So yeah, I've learned one thing, that believing in yourself and what you wear, having the confidence in showing your skin and not showing your skin is very, very important. I think girls are going to face a lot of ups and downs, because they are going to have a lot of shoots and shows where they will be forced to wear. No, you'll have to wear this. Listen, don't wear it if you're not comfortable. Do not wear it if you're not comfortable, because you won't be yourself, and that's going to, people can see that on your face. So I think the best outfit you wear is confidence, and just be the way you are. Wear what you want to. And I think piche mat dekho, when God opens a door, it's for a reason, right? So when the doors are open, just keep going. I know there are ups and downs, but the life is roller coaster. It will be very, very boring if it's really just good. So face your problems and be as strong as you can with every problem you face it. That's all I would say. Thank you very much. Stage. Me and Rajiv were just talking about something where he just told कि सबके पापा ऐसे क्यों बोलते हैं कि नहीं करना है या अलाउ नहीं करेंगे. And that topic just hit me. I think I'm blessed in that way that my parents were like very happy and used to say, everybody can do it, you can also do it, why don't you start? And the women empowerment starts from your home, and then with your family, and then with your friends. And I have a wonderful friend like Dr. Khushi who gives you the platform, not only for the models, but into the media and everybody, where you can talk about yourself. You can spread your wings through a family and the friends. Thank you. Well said. Not be having the salt and pepper. So, Jai Shri Krishna everyone. So, my name is Rajveer Singh. We talking about women empowerment कैसे होगा, but I strongly believe empowerment हो चुका है. That is why we're discussing it. I like when we were talking, me and Khushi, I said, okay, every woman is a working woman. Only few get paid. So like, हम कहते हैं आप क्या हो, housewife हो. Housewife does not get any salary. But trust me, उससे difficult कोई job नहीं है. So I rather use a terminology homemaker. Homemaker. She is the one who makes her home beautiful. Like Viva said, हम लोग discuss कर रहे थे. Almost all the girls said, my family does not allow me. मुझे allow नहीं था, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ. खुशी मैम ने platform दिया. So like Khushi, Viva and all the esteemed panel members, can we actually have a trend like ये allowed नहीं है ऐसे मैं कर सकती हूँ. अभी एक्चुअली में अगर आप देखें तो अभी भी हमारे यहाँ पे वो टैबू है. उस माइंडसेट को दूर होने के लिए we are just few. It takes one person, one Khushi to start it. Yes. So why not start it today? Yes. Now again we have the debate actually. But in this case, yes, of course, it will take some time. We have to be mentally prepared for it. But yes, of course, it's going to be happening very soon. I'm looking forward for this. I believe Manasi. Manasi is yes, of course, yes. So why not start today? So hi, namaskar, namaste. This is Manasi Naik. I know we actually are discussing about women empowerment, but I personally feel we are really incomplete without the men. Let's face this, okay? Thank you. In today's, you're welcome. Because in today's life, it is very easy to make any kind of statement just like that. We are all here to support each other, and first of all, I would love to say heartiest congratulations to Dr. Khushi. जैसा नाम है वैसे ही personality है. Let's face it, खुशी.
and the entire team of the Perfect Women magazine. I think you are playing a very good job. You're voicing us as a woman, as a girl, you know, as a Mother Earth, I would, you know, term it as. You're voicing us. It gives an immense pleasure. It gives very emotional, you know, emotionally I'm saying this, you're voicing us, you're giving us this kind of platform where we can actually talk our heart out. And then again, the entire team, your team, is doing a very good job, and I am more than happy to be a part of this. Thank you so much once again, and once again I want to invite Rupali Suri. I was actually waiting for a lot. Rupali Suri is a versatile performer. She's an actress. She's always late actually. कि हर औरत हर महिला परफेक्ट है और इसकी वजह यह है कि वो महिला है और उसी की वजह से पूरी सृष्टि चलती है, पूरी कायनात चलती है। वो हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी भगवान भी है, उनकी वजह से ही हम सब हैं। तो हर औरत मेरी नज़र में भी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अपनी माँ के पैर दिन भर में 5 बार छूता हूँ, वैसा बेटा हूँ मैं सुबह जब निकलता हूँ काम पे जाता हूँ शूटिंग के लिए, तब भी उसके पहले पैर छूता हूँ। सुबह उठता हूँ तब पैर छूता हूँ। तो बिल्कुल माँ का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि आपका जवाब बहुत सही है, बहुत अच्छा है। सारी महिलाएं बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हैं। Thank you so much. थैंक यू। आई लाइक इट। थैंक यू, थैंक यू। Can I go? Yeah, but leave my mic. Okay. Huh? वाओ। राज सर, मैं कुछ आती हूँ क्योंकि अभी मैं अगर राज सर को बुलाऊंगी वो सीधा भाग जाएंगे यहाँ से कि तुम लोग तो बैठ खड़े हो, मुझे बार बार एक्सरसाइज कराओ। जी। Okay. You are from northeast, Darjeeling, yeah. दार्जिलिंग और मुंबई क्या फर्क है? सर बहुत फर्क है क्योंकि क्या? दार्जिलिंग हम लोग चाय पत्ती के लिए सब हम लोग फेमस है, आप लोग को भी पता होगा। और मुंबई एक ऐसा सपना का महल है जो नीचे गांव से भी आके हम लोग एक ना सपना देख के आते। तो पहले मेरे पापा डिश लेके आया था घर पे, तभी हम लोग ऐसे दिखता था, जो वॉक करता था और हम लोग छुपके से दिखता था। तो हम लोग को मुंबई दिल्ली बोले तो बहुत बड़ा, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता था, जब भी कलरफुल भी नहीं था। तो आप लोग को वहाँ पे हिंदी नहीं सिखाई जाती है क्या? सर हिंदी बंगाली होते हैं, लेकिन हम लोग नेपाली बात करते हैं और हम लोग घर पे भी नेपाली बात करते हैं। सर आपकी हिम्मत है, आप बॉम्बे में पार्टिसिपेट करने आए। रियली वेरी करेजियस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, दिल से थैंक यू। और डॉक्टर खुशी मैम को भी थैंक यू क्योंकि ना ऑफ कोर्स खुशी इज ऑलवेज फर्स्ट। सबकी खुशी। थैंक यू। Now, okay. So now. Hari Om, thank you. I am Ajit Modi. To whom I have to ask the questions. Okay. You got a good confidence. You just fumbled for a second. And then you made yourself perfect. How you do it? In front of this audience and everybody. आप थोड़े टाइम के लिए फंबल हो गए थे, हाँ, फिर आपने आपको संभाल लिया। It's good. From where do you get this confidence? कॉन्फिडेंस मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब मैं लोगों के सामने आने में बहुत घबराती थी। बट कुछ ऐसे हादसे हुए मेरे ज़िंदगी में जो मुझे कहते रहे कि योगेश्वरी, अगर तू खुद से प्यार नहीं करेगी, तू खुद से भरोसा नहीं करेगी, तो लोग
तुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, तुझ पे प्यार नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे हादसे हुए हैं मेरी ज़िंदगी जिस वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है, और मुझे फख्र है अपने आप पर कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई। आपकी हिंदी बढ़िया है, बहुत धन्यवाद। Absolutely, absolutely. She really nailed it. She is from She's from Latur. Latur. Okay, from Maharashtra. Hi. What is revenge in your life? Revenge. There is no revenge for me. I believe in karma. If you do bad to me, God will do bad to you. So it's all about ये karma. सिर्फ बुक्स और उसमें होता है. No, Be honest. I do believe in karma. The And perfect example yeah, of it. revenge. If you say I will prove myself, Okay. okay, my revenge is I will make my family proud and make everyone think that I am the best. That is my revenge. I will make my family proud. I will make myself proud of myself. So, yeah, thank you. जी, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मी टू मूवमेंट हम सभी को पता है, बहुत बड़ा मूवमेंट बना मी टू, आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट। पर अभी मैन टू की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और जैसे स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद तो बहुत सारे हैं, अब पुरुष अत्याचार विरोधी परिषद भी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अतुल सुभाष जी का एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा हमारे सामने है। तो आप ये जो पुरुषों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से सभी जानना चाहेंगे। एक स्त्री होते हुए आपके मन की भावना क्या है? धन्यवाद। Firstly, good evening everyone and thank you for the question. Recently we have seen the case of Atul Subhash which happened and it is really disheartening. I think for that case, as a woman, it's our responsibility that we should not do fake cases or prevent those kind of actions for which men is going to be in a wrong place. So firstly, I think as a woman we should take the responsibility to make as a man feel safe to women, as a woman we also have to feel them safe. So with this initiatives, I think India will change soon for men. Thank you. वेरी नाइस आंसर, इनके लिए जोरदार तालियां हो। थैंक यू सो मच। सर आपकी आवाज ऐसी है, मैं नेक्स्ट टाइम आप ही को बुलाऊंगा। बचपन से यही कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि योगेश जी वगैरह सब आप लोग कब बुलाएं। कौन सी आवाज? Yeah, Devang sir. A question by you. नाइस सवाल। No, Sadaram sir. माइक देंगे आपको प्लीज? कहाँ है मेरा माइक? कहाँ है मेरी माइक? आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा है, फेम है, या कोई रिलेशनशिप है, मदर है, क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़? आपको क्या लगती है अपनी लाइफ में? फैमिली। एक्चुअली पैसा तो कोई भी कमा लेगा, कब भी कमा लेगा, बट फैमिली साथ में होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, और सभी बातों में पैसा नहीं लगता ना, फैमिली की जरूरत होना भी अच्छा है। वेरी गुड आंसर, थैंक यू वेरी मच। वेरी So true sir, family is the pioneer of everybody sir. पिलर तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब नींव मजबूत हो, फैमिली के बगैर तो कुछ भी मजबूत हो ही नहीं सकता। सो नाइस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सर। Right. So, who, according to you, is a woman who's achieved the maximum, and why do you think so? सॉरी सर, हिंदी में पूछ सकते हो आप प्रॉपर?
सवाल इनका ये है कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी महिला है जो बहुत बड़ी अचीवर है और आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि वो महिला इतनी बड़ी अचीवर है? मेरे लिए और मेरी लाइफ में मेरी माँ सबसे बड़ी अचीवर है, क्योंकि जो मेरे लिए उन्होंने किया, मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए और मेरी फैमिली के लिए, वो 20 साल से हार्ड वर्क कर रही है फैमिली बनाने के लिए और फैमिली सपोर्ट के लिए। और मुझे यही लगता है कि हर फैमिली में कहीं ना कहीं एक माँ होती है जो सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है। मेरे लाइफ में सबसे बड़ी मेरी माँ है। That's actually the true answer. In your opinion, English is okay or Hindi? Both are okay. In your opinion, what is the most important essence of a woman? So, I will be talking in Hindi. No problem. Can you please repeat? What is the essence of your? What is the most important factor to be a a successful woman? एक बार आपको फिर ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। एक महिला, एक औरत होने का सबसे बड़ा गुण क्या है? कौन सा गुण ऐसा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है एक महिला में वो गुण होना चाहिए? सपोर्ट, क्योंकि एक महिला का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लाइफ में। उसकी हस्बैंड हो या कोई डॉटर, सन, सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सही बात है। अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो पूरा घर टूट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वेरी वेरी गुड आंसर मैम, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अपने बारे में आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन सी वो एक क्वालिटी है जो आपको सबसे अलग बनाती है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मतलब मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं खुद को मतलब I'm really sorry, लेकिन मराठी मी माझ्या स्वतःवरती जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, मी स्वतःवरती खूप विश्वास ठेवते आणि जो स्वतःवरती प्रेम करतो, स्वतःवरती विश्वास ठेवतो, तो काहीही करू शकतो। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे लिए करना होगा कि मैं क्या बोलूं। इन्होंने ये कहा कि उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और वो खुद से बहुत प्यार करती हैं। और जो लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं और जिनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, उनको खुश रहने से, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वेरी वेरी गुड आंसर मैम। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अभी आपने जो ये किया, तो इस दौरान आपके अंदर कोई ऐसी भावना चल रही थी, कोई ऐसा इमोशन चल रहा था जिसकी वजह से आपको लगा हो कि शायद आप सही कहीं आपने कुछ गड़बड़ की है, या कुछ किसी भी तरह का ऐसा इमोशन था जो नेगेटिव इमोशन था इस पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान आपके अंदर? नहीं सर, ऐसा कोई भी नेगेटिव इमोशन, मैं अवेयरनेस रखती हूँ। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे पता है जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता भी है। तो मैंने कोई नेगेटिविटी या कोई डाउट नहीं आने दिया है अपने अंदर। और मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आई एम 36 and I'm standing here in front of you, and I'm single, and hopefully I get married soon, but I don't think that's the only thing a girl should be looking forward to. अपने ड्रीम्स पूरे करो और अपने पे भरोसा करो, जैसा इन्होंने कहा, खुद से प्यार करो। और ऑफ कोर्स सपोर्टिव होना ज़रूरी है वुमन को
फैमिली एंड ऑल इज़ गुड, बट अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई फील आपका जो आंसर है वो यही है एग्जैक्टली कि मैंने अपने मन में कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई डाउट, कोई शंका नहीं आने दी, कोई डर नहीं आने. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपसे नमस्कार मैम. हिंदी में करूं सवाल या अंग्रेजी में? मातृभाषा हिंदी, इंग्लिश. बहुत बढ़िया. तो मेरा आपसे सवाल ये है मैम कि जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तरह के स्टंट होते हैं, बहुत तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं और सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज़ होता है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? और आपको लगता है क्या कि ये जो मिसयूज़ होता है सोशल मीडिया का, उसके ख़िलाफ़ उसको रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? अगर कोई उपाय आपके मन में है तो आप वो भी हमसे शेयर कीजिए प्लीज़. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर. मेरे हिसाब से आजकल जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जोर पर है और हम सब जानते हैं कि आजकल छोटे बच्चे और टीनेजर, अडल्ट सब यूज़ कर रहे हैं. कई चीज़ें ऐसी हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे अदर एनी ऑफ द रीज़न. मेरा मानना है कि अगर आप उस चीज़ पे ना फोकस करके सोशल मीडिया पर जो आप रियलिटी पे फोकस करें, ना कि रील पर, तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे. और यस, अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बने हैं जैसे कि साइबर क्राइम एंड ऑल. अभी भी बहुत सारे लोग झांसे में आ जाते हैं, कई तरह की घटनाएं होती हैं जिससे बाद में लोगों को पता चलता है कि हमें शायद सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं होना चाहिए था, शायद रील से रियलिटी में आना चाहिए था, तो जाकर हम बच जाते. बट ये मेरा मैसेज है सबको कि रील लाइफ से निकल कर अगर हम अपनी फैमिली और सोशल लाइफ और रियल लाइफ में जिए तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे. थैंक यू. राइट, वेरी गुड आंसर. थैंक यू मैम. हो गया यार. हिंदी में? यस सर, यस सर. हिंदी में कॉन्टेस्ट में आई हो, यस भाग लिए हो, विनर बनोगी तो क्या करोगी? सर मैं विनर बनने के बाद तो पहले अपनी मम्मी पापा को थैंक यू बोलूँगी, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पेरेंट्स लाइक मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, सो दे वर हैविंग लाइक टिपिकल थॉट्स कि बेटियों को कुछ बाहर जाके नहीं करना चाहिए. फिर देवर लाइक कि नहीं सिर्फ लड़के ही काम कर सकते, लड़कियों को सिर्फ घर का काम करना चाहिए, जो कि रॉन्ग था. मुझे बचपन से खुद मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग का बहुत शौक था, बट वो मुझे अलाउ नहीं करते थे. एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने देखा कि सबकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, सो देवर लाइक कि हाँ ठीक है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. सो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड एंड माई पेरेंट. सो मैं उन लोग को थैंक यू बोलूँगी और आई एम सो थैंकफुल टू देम. गुड आंसर, थैंक यू वेरी मच. जी नमस्कार. एक और बार आ गया मैं यहीं पर आकर के, भाई स्टेज का हमारा काम है, हम स्टेज पे. मैं मैम आपसे, आप साउथ इंडिया से हैं, फ्रॉम विच? हैदराबाद. आप बोलिए, माइक पर बोलिए बिंदास. आपके अमेजिंग यंग फादर सुन रहे होंगे आपको अभी, एंड मस्ट बी वेरी प्राउड फादर. मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मैं हिंदी पूछ सकता हूँ, इंग्लिश? ओके फाइन. सो यू नो द थिंग इज, people coming from vernacular mediums or from regional states and speaking their own mother tongue, like what we saw here, she spoke in Marathi, right? She spoke in Hindi, you spoke in Hindi. अभी हमारे देश में एक बहुत ही हमारा दुर्भाग्य है, it's a misfortune of this country that we look down upon the people who speak in regional languages and who are from vernacular medium, who have not done their education from English medium. Now, what is your interpretation of that, and how do you think, if this is a problem at all, and if it is, then how it should be looked upon, and what is the solution? So coming to the question. So You can bring the mic closer. You have to literally kiss the mic.
Okay. So it's just a mic, so no problem at all. निर्जीव चीज है, जीवित नहीं है, तो आप उसको किस कर सकती हैं. So firstly, everyone loves their mother language because it comes from birth actually. So after that, we will be studying and we will be into a different like Telugu medium, Hindi and English and our primary languages. But I think language is always is all about expressing your own emotions actually. So whenever we are positive or negative, either we fall down or we grow up, we always do our sign of mother language like ama or abacha or something related to our language. So I think language is important. If you go to the interviews, if you want to crack big professional courses or degrees, but coming to the daily life or regular system to connecting people, I think normal language is always to express their emotions. So I think there is no particular reason that everyone should speak in English or everyone should speak in their city language or something state language. I think wherever we go, if we do the emotional connection to the person, I think language is not a big problem to show the talent to the society. Because I am from Hyderabad, today I am in Mumbai, presenting here in the show, and today I am speaking English, and sometimes with my friends I speak Telugu yesterday also, because there is a common connection between person to person that we can connect to the smile or to touch or to the to some actions. So I think that language doesn't make a main line to prove your talent. So that is I want to tell. That's not. Okay, thanks. Thank you so much. जोरदार तालियां इनके लिए. मित्रों, भाषा जो है वो संपर्क का माध्यम है, संघर्ष का नहीं. और हर भाषा का सम्मान है, चाहे वो अपनी मातृभाषा हो, चाहे हमारे देश की कोई क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे विदेशी भाषा हो. भाषा संपर्क का माध्यम है. और यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिसर्च आप सभी से शेयर करना चाहूँगा. यूके यूएसए से बहुत सारे डेलीगेट्स एजुकेशनल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने ये लिख करके दिया है कि वर्नाकुलर मीडियम से क्षेत्रीय भाषा में पढ़े हुए बच्चे कहीं ज्यादा ब्रिलियंट हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीखे हुए बच्चों से. ये लिख करके दिया हुआ है. ये सच्चाई है जिस बहुत कम लोगों को ये बात पता है. और हमको हर भाषा सीखनी चाहिए जो इंटरनेशनली जरूरी है, जिसे हम राष्ट्रीय भाषा समझते हैं, और जो हमारी अपनी मातृभाषा या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसकी क्षेत्रीय भाषा हो. मैं चाहूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट हमें मिला है विदेशियों से, अब हमारे स्वदेशी लोग जो है, स्वदेश न्यूज भी हमारे साथ में है, स्वदेशी लोग ये सर्टिफिकेट अपने आप को देना शुरू करें कि हमारे वर्नाकुलर मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज्यादा ब्रिलियंट हैं, और हमको हर भाषा का सम्मान करते हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वो सारे चेंजेस लाने चाहिए. इसके लिए आप एक प्रणले और जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. लास्ट सवाल आप पूछना चाह रहे थे? आखिरी सवाल हमसे. सॉरी, वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते. Okay, now moving on to our next segment, which is the final segment. This is a subtitle round. We are going to give subtitles to these beautiful women. So for this, I would like to invite Dr. Khushi Gurubai Thakker along with Dr. Geet Thakker. So Geet ma'am wants to be a spectator tonight because she's unwell. She wants to enjoy the show. Okay, I want to call upon the stage Mr. and Mrs. Devang. Mr. and Mrs. Devang. आ गया. नहीं हो गया.
industry, even the brands that are coming. So is here, and I'm really glad to have you, Rajiv sir. Ramesh Chauhan sir, hold on sir. Good evening, friends. I am the CMD of HC London. This is a ladies party wear and luxury fashion goods brand. This is a London-based company, and this is a soft launch what we are doing in Mumbai, and the commercial launch will be in another 1 month. So from HC London team, we thank you all the organizers, and I wish all the best to all these lovely females and beautiful females around, and my best wishes to all of you. Thank you and God bless you. सर बेस्ट विशेस से काम नहीं चलेगा, आपने जो बोला है ना तो उस पर अमल करना है बेटा आपको। विनर्स को क्या दे रही हो बताओ। Our hamper is always there. Our hampers are always there. The best products, the best gowns, and the latest fashions we have introduced. These are all tastes from London. So I will be glad to offer free hampers to all these contestants. Thank you so much. बुरा मत मानिए, but we are like this only, sir. Can I have Kinjal ma'am on stage, please? Yes, of course. Kinjal ma'am, मैं आपको काफी देर से देख रही हूँ। किंजल जी पहले ब्राइट में थी बहुत साल, और अब इनके साथ पार्टनर बन गई है। HC लंदन एक नया लेडीज अप्रैल बहुत फैशन का एक नया लॉन्च कर रहे हैं, और उनका मेरे को गर्व है कि ये लोग इतने बड़े पोस्ट में और इतनी बड़ी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। और खुशी जी जो भी जीतेगा ना उन लोग की पार्टी मेरी ब्राइट की टेरेस में रखेंगे अपन। और एक बात, किंजल जी के मिस्टर भी इधर आए, निपुण भाई उनका आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। कहाँ पर है सर? प्लीज सर स्टेज पे आ जाए। आई फील जब तक ये फाइनल हो रहा है कि इन टॉप 6 में से टॉप 4 कौन है, टॉप 3 कौन है, टॉप 4 कौन है, तब तक हम ये बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते। कहाँ गए सर? अच्छा हाँ सर सर यस सर। Thank you very much. I thank you first of all Yogesh ji for invite me for this perfect Miss contest, and I'm very glad that every time he invites me here, and special he makes my birthday always makes special always. आज इन्होंने मुझे यहाँ पे भी बुलाया है और मुझे यहाँ से बहुत रिस्पेक्ट दिया है इतने सालों से, आज भी दे रहे हैं, और I wish thank you very much to each and every person, and thank you and the contestants who are there, who are putting a lot of efforts in this contest. I am very much glad and very much happy that there are new faces are coming out in the industry, and that's all. Thank you. Sir, you did good, sir. आपने अच्छा किया। Thank you so much everyone. Actually, आपका बर्थडे था, बहुत सारी बधाइयाँ। May universe bless you with abundance of success, good health, wealth, peace, harmony. That is the need of today, and lot of best wishes, not just for you, for your future endeavors as well. आप हमारे स्टेज पे हैं, हमारा ये सौभाग्य है, हम आपका दिल से शुक्र हैं। हमारी हंसी मजाक में ना जैसा हम अच्छे इंसान हैं। एंड थैंक यू सो मच योगेश भाई, आप हमेशा जब भी आते हैं मेरे हर इवेंट में आप अपने साथ जिनको लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया है कि बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि ये इनके साथ काम करते थे। हम जब अचीवमेंट की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, सी वुमेन एम्पावरमेंट, ये एम्पावरमेंट फलाना दिन का अलग बात है, पर एक साथ में काम करके आज जब वो किसी और के साथ करे तो ही इज हैप्पी फॉर हर। सो दिस इज एक्चुअली अ ट्रू एम्पावरमेंट। हम एम्पावरमेंट की बातें करें, दिस इज व्हाट योगेश भाई हैज बीन डूइंग। सो योगेश भाई आपको पूरा अचीवमेंट आता है। थैंक यू सो मच फॉर बी देखिए आई एम सो हैप्पी। देखिए ये होता है एम्पावरमेंट। अभी जो सर ने कहा ना, ये बात सबसे अच्छी थी। जितने हैं ना उन सबको गिफ्ट गुडीज इनकी तरफ से, माइक चल रहा है ना, बंद ना हो जाए, होर्डिंग इनकी तरफ से, और बाकी के सारे न्यूज़ चैनल्स जो हमारे साथ हैं उन सबका मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। कहीं ना कहीं ये इवेंट अच्छा नहीं, वो मुकाम तक नहीं पहुँचता आप सबका साथ ना होता तो। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस सर।
एंड थैंक यू सो मच सदानंद सर, आप मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पर थे, आप सबका मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। राज सर, आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं सारे कंटेस्टेंट, और बहुत सारे आपके मुझे इंस्पिरेशनल वीडियोस मैंने देखे हैं, जो आपने अपने वीडियोस में ये बताया कि किस तरीके से इंसान स्ट्रगल करता है, किस तरीके से वो अपने मकाम तक पहुँचता है, किस तरीके से इंसान की सोच को सच में बदलना होता है। हम बातें करते हैं बहुत सारी, मेहनत करने के टाइम में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम इंस्पायर होते हैं रील्स से, जिसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मकाम तक पहुँचते हैं। जैसे मैं इन सब स्टार्स को देख रही हूँ, ये सारे वही हैं। आप लोगों को देखकर ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और वो जो कंटेस्टेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक स्टेप लेते हैं, वरना तो शायद सब सोच में ही रह जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग द पिलर ऑफ योर ओन सेल्फ। आपने अपने लिए जो मकाम किया शायद कोई और नहीं कर ले। थैंक यू सो मच सर। योगेश भाई तो मेरे भाई हैं। इट इज़ बीन 22 ईयर्स। एक्चुअली योगेश भाई के साथ मैं मस्ती इसलिए करती हूँ क्योंकि अभी 22 साल हो चुके हैं हमें एक फैमिली की तरह, और मेरे हस्बैंड और ये बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जो सफ़र परफेक्ट वुमेन की बर्थ से लेके आज तक, परफेक्ट वुमेन ने इस महीने में 14 ईयर्स कंप्लीट किया। आई एम जस्ट स्टेपिंग इनटू 15 ईयर्स। सो ऑल थैंक यू सो मच। जितनी मैडम पार्टिसिपेशन है और मैडम खुद भी 16 ही लग रहे हैं। बस यही कह लिया ना, यही काफी था। थैंक यू सो मच। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, नाउ आई फील द रिजल्ट्स शुड बी आउट नाउ। ओके, अभी can we have Mohsin Siddiqui on stage? एक्चुअली मोहसिन सिद्दीकी को इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो मेरा भाई है। Where is he? I feel like family is first. Yes. हाँ, last. He is the founder of Success Styles, a great support for me for years. वो तो मुझे भी नहीं आता। अगर ये अब नहीं आता तो लीगल लैंग्वेज में उनको समन्स भेजना पड़ता है। Yes. अभी क्योंकि अभी अनाउंसमेंट होने वाला है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक ग्रुप फोटो लेते हैं। मैं मेरे ज्वेलरी डिजाइनर आयशा को बुलाऊंगी स्टेज पे, मैं मेरे विनर्स को बुलाऊंगी, सबको बैठना होगा, मैं किसी के साथ में भी खड़ी नहीं रहूंगी। I would like Latika Rathur, Rita Shetty and वो क्या बोल Sashi रहे Pandey. ये सिर्फ क्राउन नहीं है, what you are seeing, they are the winner in the life as well. इन्होंने जिंदगी में काफी संघर्ष किया है। Geet, I want you also with us. Geet.
top 6 to be here present on the stage. And the others, please form a line behind top 6. Now is the moment. आज की रात Okay, the wait is over. Okay, are you all ready? Are you all ready? All the very best. And now is the moment. And what? So I would request Khushi ma'am to step ahead to crown the Perfect Women Award. Okay, we'll start with Perfect Women Award. Well, I would just like to highlight this as to what perfect women means. This award is going to somebody who is very powerful, very courageous, very effervescent, and very dignified. Somebody who is classy as well as sassy, bold and beautiful. And that girl is... Perfect woman is somebody who can balance everything. Life, house, work. We all say we all are perfect. In reality, nobody is perfect. It's all about how we accept our flaws and how we move ahead. We cannot compare ourselves with others because we are who we are, just made by the universal God. I believe Krishna, you, whoever you be. The point is only one, you have to make yourself family proud. आपके घर वाले कभी नहीं चाहेंगे you become Shushmita. They want you as who you are. They will not say that you become Aishwarya. They will say, I want my daughter to be who she is. They'll be proud of you. So make that. It's not about this much. It's about wherever, whichever field you go, you have to be the best version of yourself. And that is perfect women. So, shall I announce the name of the perfect women? Okay, I'm going ahead. The Perfect Women 2024 award goes to Neha Shastri. Woo! Neha, congratulations. Why do we not have music? Play music. मेरे प्यारे साथियों और सभी क्षेत्रवासियों, सुपर डीजे का प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि बेटा मैं तेरे जैसे घिसा पिटा Second runner-up, and for that crowning I would like to request Sanand and Raj Rani sir to step ahead for the crowning moment for second runner-up. Shall I now disclose the name of second runner-up? Please disclose now. Okay.
So it goes to me. It goes to Khushi ma'am. It goes to Juhi Srivastava. हसदा देख के जगनू मैं भुल जावानी दस दे कितना गल तेनू समझावानी वो अब दर्शन दे जो है तेरे नाम नखरे पूछ रहे हो मैनू चचदा नहीं इन्ना सवाल कर दिए नाम सुनता नहीं होर दस कितनी तारीफ चाहिए तेनू मैम गिर मत जाना। बाकी करे शाइन तू करे ग्लो जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूट के पेट एक बेबी जैसे मेरा फ्लावर बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू Congratulations, Juhi, and now we are moving on to crown first runner-up. And for this, I would like to call upon the stage Mr. and Mrs. Moshi Siddiqui with their angels Amira and Alfia. और में लेके जा रहा हूँ। वही नहीं वो Okay. Amira, come, little angel. And Alfia. Alfia. We are waiting for you, little princess. Oh, look at her. Announce award. Come here. Come to me. Come to me. Like my little princess. Come. Wow. Yeah, there she is. There she is. Yeah, look at the smile. Okay. Huh? Yeah, she walked. Amira? Oh my gosh, she's running. Yeah. She's winning me. Yes, absolutely. ये ऊपर क्या लगा है कैमरे की? She's the queen. ये आवाज़ का है। इसका दूसरा भी सिस्टम रहता है वो बाहर रखा। Okay. First, I'm disclosing the name now. मैं आलू बैकस्टेज। First runner-up goes to. Are we ready? Are we ready? Okay, so first runner-up goes to. थोड़ा दिल की धड़कन चेक कर लेती हूँ सबकी, if I'm allowed. आला नहीं मेरे पास नहीं आपका तो आप घर जाके चेक होगा. यहाँ सबसे ज़्यादा तेज धड़कन है guys. Baap re. Is it normal? Humanly possible? Okay. Now I'm going to disclose the name of first runner-up and it goes to Priya. Look camera, all of you. Look at the camera. You go and stand there. Look there, look there. Yeah. Wow. She's actually the star. Look at the pose she's giving.
We love you, Myra and Alfia. We love you. Love you. Flying kiss. Yeah, look camera. Wow. Beautiful moment. Beautiful moment. And up, finally, the winner. The winner moment is here. Okay, for this winner, I would like to call Yogesh Lakhani on stage. Still I'm so confused. Everything is happening so fast. Okay. इसमें तो करना बनेगा ना, ये फाइनल है. यार यही पे दिल धड़क रहा है यार बार बार, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. Okay, all the best. I'm going to announce the name now. Miss Perfect. Sorry, don't capture that, delete that. Okay. Take a look. Perfect Miss of India. Perfect Miss of India. Perfect Miss of India. And it goes to no song. It goes to डांस कर लिया, मैं ही नाम भूल गई, वापस पढ़ के आती हूँ. It goes to Snigdha Pinamati. Congratulations, winner, Perfect Miss of India. Season 10. Please invite your families. Snigdha, I would like the dad and the mom to join the daughter. It's a priceless moment. Please come over the stage. Very wonderful. प्रिया की पूरी फैमिली स्टेज पर आ जाए, ये बहुत ही priceless moment है. The dad is also coming. Let him come. The mother also come. The sister also come. आइए ना. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अरे look camera, all of you. Thank you. Now I want all the 4 winners to step ahead. Step ahead, be in the same line. 4 winners to be in the same queue. Congratulations, all 4 winners. Congratulations to each one of you all. You guys are capable of coming here, making it here, which means it's a big day itself. So you guys are winner already. Priya. You all are winners, in fact. हाँ युगेश सर के बाजू. बस इधर देखिए. क्योंकि यहाँ पे
अच्छा लुक यहाँ पे, लुक Thank you so much for this wonderful evening. Thank you so much. You guys have been awesome, lovely audience, enthusiastic audience. I hope I was able to entertain you all. I hope you loved my performance. I hope you loved these beautiful people. Thank you. फिर मिलेंगे. Bye bye. Take care. Thank you. God bless you all. Lots of love. Thank you. This was me, Nandini Roy, anchor, journalist, signing off. Thank you. Good night. एक मिनट अरे म्यूजिक तो स्टार्ट करो। अरे यार रुको, प्लीज लुक कैमरा, प्लीज ऑल ऑफ यू। खुशी मैडम अरे रुको, बाहर जाऊं? नहीं लेना 1 2 3 अरे 5 विनर है। नहीं पर वहाँ पे और मीडिया है तो आज यहाँ पे अच्छा लगेगा सबको मीडिया वाइट मैडम मेरे एक बाइक के लिए आ जाइए पहले। मेरे एक सोलो होना क्योंकि मैक्सिम के लिए लगेगी सब लोग एक थोड़ा बच्चा एक करके हाँ लुक कैमरा, मैडम अभी साइड हटो आ जाओ फिंगर नहीं फटाफट किक फास्ट चलो यहाँ पे, लुक यहाँ पे, इधर हाँ छुट्टी होगी छुट्टी एक हाँ इधर हो गए। लाइट कैमरा एक्शन। चलो किया, थैंक यू। अरे शदाब वो प्रिया बाहर जा रही से बोल रहा इधर यार फाइट के लिए बोलना से प्रिया प्रिया पहले बाइक कर लो बाहर जाके मीडिया में। हाँ ओके रोल क्या चालू जी मैम क्या भी कहना चाहेंगी परफेक्ट एचीवर्स अवार्ड्स के लिए आप यहाँ पर आई है, किस तरह से आप इससे जुड़ी हुई है? एक्चुअली मिस परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत न्यू कमर्स मॉडल्स को फीमेल्स को बहुत सॉरी कट कर दो ये इट इज़ नॉट अचीवर्स, अच्छा इट इज़ अचीवर्स। परफेक्ट मिस वुमेन ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है न्यू कमर्स को। सब लोग अलग अलग सिटी से आए हैं, देव कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन एंड आई थिंक यहाँ पे आके उन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई जाएगा एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद एंड मिस्टर संजीव जी को बहुत 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 बड़ा थैंक यू देना चाहूँगी। ही हैज़ बीन माई बैकबोन, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट वन टू गेट मी इन टू इवेंट्स एंड तब से बस दौर चलता ही आ रहा है और आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ वो भी है हर शो में मिल ही जाते हैं। सो थैंक यू संजीव जी फॉर गिविंग मी अ किक स्टार्ट टू माई करियर एंड many congratulations and I hope and I will always pray that you not one channel, I will always pray that you have more 10 channels in life and they all go boom. Thank you very much and all the best to all the models. This is just a start, life बहुत आगे है अभी। Thank you. सभी आपको जानते हैं स्तंभ हो बाकी सारे और रेस्टोरेंट्स के आप करता है मालिक है। आज यहाँ पर आप आए परफेक्ट एचीवर्स अवार्ड्स में, किस तरह से आप जुड़े हुए इससे और क्या आपका अवार्ड मिल रहा है क्या? पहले तो आप सबका शुक्रिया। दूसरा मैं खुशी जी के हस्बैंड हैं, उनको काफ़ी टाइम से जानता था, वो अभी शायद अब हम लोगों के बीच में नहीं है, तो खुशी जी ने मुझे बताया था कि इवेंट है आज, तो मैं आया हूँ और अच्छा चल रहा है बहुत अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रुक पा रहा हूँ क्योंकि मेरा उधर आज फ्राइडे है तो मुझे जाना होता है, लेकिन इवेंट बहुत अच्छा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है देख के। और वो
वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपके बारे में क्या बताना चाहेंगे, स्तंभ के बारे में मुझे बता सकें? रेस्टोरेंट अभी ओपन किया है यही इसी महीने 2 तारीख से, और आप लोगों के वजह से मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं। तो एक डिफरेंट थीम पे हमने स्टार्ट किया है, तो कोशिश है कि लोग आएँ, खाएं पिए एंजॉय करें वहाँ पे। स्तंभ न्यू ईयर में अभी फ़िलहाल हमने ओपन रखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो हम चाह रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं करें कि लोगों को ऐसे पैसे ले। ओपन रखा हुआ है, जो आएगा और खाए पिएगा और पैसे देगा। थैंक यू। मीडिया वाले से बात करता हूँ। मुझे कोई क्यों नहीं ले रहा है आज? मुझे लग रहा है मैं एकदम ब्राइट गोल्डन। आइए मैडम। अरे यस हमारी तरफ कोई क्वेश्चन तो पूछेगा? अच्छा, उसमें देखना है। ओके। वुमेन्स के लिए ये अवार्ड शो है और यहाँ पर फैशन शो किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे खुशी मैम ने ऑर्गेनाइज किया? पहली बात तो मैं ये एक मैं इस मैगज़ीन को बधाई हमेशा देना चाहूँगी, बिकॉज ये बहुत दिल के अजीज़ मैगज़ीन है। आई हैव बीन ऑन द कवर ऑफ दिस मैगज़ीन एंड आई थिंक इट्स हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। ये मैगज़ीन हमेशा कुछ ना कुछ एक मोटिव, एक मैसेज, एक मोटो के साथ बाहर आता है, एंड कुछ एक इंकरेजमेंट, एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैगज़ीन, अ ब्यूटीफुल कंटेंट एंड अ सब्जेक्ट, एंड आई ऑल्सो वांट टू से all the contestants who have participated in this contest, all the very best. It's a beautiful experience. Enjoy yourself, take back some lovely memories home, and yes, Khushi, amazing job. क्या प्लान है 31st for New Year का? यार हर साल मैं काम करती हूँ 31st के दिन, कहीं ना कहीं शोज़ कर रही होती हूँ या ट्रैवल कर रही होती हूँ। ज़्यादातर तो इनफैक्ट शोज़ के लिए बुकिंग आती है, बट इस बार आई थिंक आई वांट टू बी एट होम बिकॉज आई हैव अ लिटिल फ्री टाइम, सो आई एम गोइंग टू बी विद माई डॉग, विद माई फैमिली, एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माई 31st। यार रेजोल्यूशन ना तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, सो यू नीड टू मेक रेजोल्यूशन सो दैट यू कैन ब्रेक इट, सो दैट्स ऑल आई कैन से। बट एनीवेज, हैप्पी न्यू ईयर एंड a very happy and a successful 2025. I believe it is going to be a very shining year, and may God bless and may the power be with you. Thank you so much. ऑर्गेनाइज किया गया खुशी मैम के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और Women's awards are the essential part of the life. जैसे women is essential part of the system, part of the life. Without women there is nothing. औरत नहीं तो दुनिया नहीं। उनको नवाजा जाए, अवार्ड्स दिए जाए उनके काम के लिए। मुझे भी अवार्ड दिया है काफ़ी सालों के बाद, किसी ने, खुशी ने पर्पसली मुझे पुल अप किया स्टेज पे, फॉर विच आई एम बिट एम्बेरस्ड एंड ऑल्सो हैप्पी एंड थैंकफुल। थैंक यू एवरीबडी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। तरह से कर रहे हैं, एंड मोस्ट लाइकली द बेस्ट पार्ट वाज द कॉन्फिडेंस दैट एक्चुअली दैट वी वर वेयरिंग रादर देन द क्लोथ्स एंड रैम्प वॉक्स। पेजेंट विटनेस करना अपने आप में एक पिछले समय की याद दिलाता है, जब हम लोग ऐसे शोज़ करते थे या विटनेस करते थे, उनमें पार्टिसिपेट करते थे। सो इट्स बीन अ प्लेजर है। या सॉरी 2025 का वही रेजोल्यूशन है जो 24 में सफल नहीं हो पाया, और कोशिश यही रहेगी कि आगे की तरह बढ़ते रहें, रेजोल्यूशन बनता रहे। और अभी तो फ़िलहाल यही रेजोल्यूशन है कि पिछले साल में जितनी मेहनत करी है, इस साल में जो मेहनत करी है उससे डबल मेहनत अगले साल में करें, वो मल्टीप्लाई होती रहे आगे की तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।
सबको। क्या कहना चाहेंगे खुशी जी के इस अवार्ड शो के बारे में, फैशन शो के बारे में और फैशन स्टार? आई थिंक हम लोग हर साल आते खुशी जी की खुशी के साथ शामिल होने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म दैट शी इज़ क्रिएटेड के हर तरह की औरतों को वो चांस दे दी। जैसे मिसेस इंडिया होता है, मिस इंडिया होता है, और यहाँ पे आपकी बॉडी टाइप या आपका स्किन कलर उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि सबको बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है। तो आई थिंक इंडिया में आजकल ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं आप देखो लोग आपको बोलेंगे मोटी है, काली है, ऐसी है, वैसी है। तो आई फील हाई टाइम कि हम लोग वी टेक अप दिस चैलेंज एंड एनकरेज एवरीबडी को। जैसे आप सब इतनी सारी फोटोग्राफी, सोशल मीडिया आने से सब लोग को कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा लगता है, बट जितना काम आपके लिए बना वो आपको मिल ही जाता है। आई फील जितना आप इनसिक्योरिटी रखोगे उतना आपके काम पे असर होगा। पर जैसे हमने भी स्टेज में जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो काम आपके पास सामने से कदम चूम के आता है। हम आप 33 ईयर्स से हेयर एंड मेकअप कर रहे हैं, बीट ऐश्वर्या, बीट दी अंबानी, बीट दीपिका, हुएवर। तो हम लोग जब पॉजिटिव सोचते, काम को एनकरेज करते, तभी काम हमारे पास आता है। हमें बीट मांगने नहीं है आपको काम दो, ये दो, वो दो, ऑटोमेटिकली काम आता है। बिकॉज आपकी मार्केट वैल्यू ऐसी हो जाती है कि 30 साल का जो कॉन्फिडेंस है, 30 साल का जो जर्नी, वो देख के लोग ऑटोमेटिकली आपको सीनियर मांगते हैं और दे कम टू यू फॉर वर्क। तो ऑलवेज फील कि हर एक फील्ड में बीट है मेकअप, बीट स्टाइलिंग, बीट व्हाट खुशी इज डूइंग, आज उसने अपने हस्बैंड की लेगेसी अभी भी बरकरार रखी है कि शी नॉट, वो बौखला नहीं गई है, डर नहीं गई कि भाई मेरे हस्बैंड अभी नहीं रहे तो आगे क्या। तो आई फील ये इंसान अगर सब हम लोग ऐसे ही सोचते रहे तो हमारा काम बढ़ते ही रहेगा, कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। और हमने तभी नरेंद्र मोदी जी को भी एक लेटर लिखा है कि आई थिंक कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम को बैन करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक आप 3 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ेंगे, किसी ने सुसाइड किया, राइट, दिल्ली की ब्लॉगर जिसके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आई थिंक काफ़ी लोग सोशल मीडिया को इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की तरह लेते हैं। आपको मालूम है सब कुछ सोशल मीडिया में बिकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी फॉलोअर्स खरीद सकते हो, यूज़ खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा तो आप भी BMW मेरी तरह नीचे उतरो, स्टाइल मारो, ये कपड़ा आज पहना, तो सब कुछ पैसा फेंको, तमाशा देखो। और जितना आप दिखाते, इन्फ्लुएंसर जो दिखा है, सबको पैसा मिलता है बोलने का। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती, राइट। अगर आज डाइसन वाले भी डाइसन का पंखा भेजते तभी जाके इन्फ्लुएंसर उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आई फील सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बनावटी है, कहीं ना कहीं जो दिखता वो है नहीं। आई फील पहले जब हम लोग उल्टा जब फिल्म पे मैगजीन खरीदते हमको वो मज़ा आता, लेकिन आज इतना इन द फेस दिखाई दिया है कि मुंह पे सब मीठे लगते हैं, बाकी अंदर में तो लोग में इतनी कंपटीशन है। तो आई फील ये कहीं ना कहीं रुकावट लाने के, बिकॉज आजकल जो नए जनरेशन बच्चे हैं वो देख के भी हमको बहुत ही शौक लगता है कि वो लोग सोशल मीडिया की वजह से इतना कॉम्पिटिशन है। हम रहते लोडा वर्ल्ड में तो सब हूज हो रहते, लेकिन बच्चे लोग उसके पास iPhone 16, तो हमको भी चलो माँ बाप के साथ रोडली बात करते, गाली बक के बात करते, मानी ये क्या है। तो ये सोशल मीडिया किस काम का, जहाँ आपका बेटा इतना दिखावा करने के लिए उसको बस iPhone चाहिए, चाहिए तो मम्मी को गाली देगा। तो आई डोंट थिंक ये सोशल मीडिया कोई भी काम का। हम लोग भी अच्छी स्कूल कॉलेज से पढ़े, हम भी अच्छे घर से आए, लेकिन हमने कभी भी माँ बाप के साथ ऐसा रूड बिहेवियर नहीं किया या सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से झगड़े नहीं किए। तो आई फील ये कहीं ना कहीं, डोंट यू थिंक सो कि इसको थोड़ा कर्व करने के लिए इसको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं एडिक्ट कर रहे हैं, वो भी उनके साथ वीडियोस बनाते हैं। आजकल हम देखते हैं, जब पहले हम लोग तो माँ बाप, अभी मेरे मम्मी डैडी हाल ही में गुजर गए, लेकिन हम लोग हमेशा माँ बाप के साथ डिनर की टेबल में बात करते थे, मस्ती करते थे। आजकल तो सब अपने मोबाइल में खाना खाने के लिए मम्मी किसी और के साथ देख रही, पापा के और बच्चे कहीं और, या टाइम ही नहीं। तो व्हाट इज द पॉइंट, ये क्या दुनिया क्या आ गई है। सो आई फील वी रियली नीड टू डू फाइन ट्यूनिंग। तो सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज सोशल मीडिया को इतना सीरियसली ना ले। एंड आई थिंक ये सुसाइड का जो चक्कर, इट्स वेरी रॉन्ग कि इतना कॉम्पिटिशन को आपको दिमाग में लेना ही नहीं है, और जो आपके लिए बना है वो आपको मिलके ही रहता है, जिसका हम लिविंग एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू माय लव। आपसे क्या कहना चाहेंगे, वुमेन्स सपोर्ट है ये खुशी मैम का, आप आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीडिया के मेरे सब दोस्तों को ब्राइट फ्यूचर एंड ब्राइट हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस। और दूसरा परफेक्ट अचीवर अवार्ड्स और परफेक्ट वुमन अवार्ड्स में बरसों से उसका हिस्सा हूँ। और गुरु भाई जब थे, मेरे दोस्त गुरु भाई और खुशी मैडम भाभी जी, उनके साथ मैं बरसों से जुड़ा हूँ। और ब्राइट जो है इंडिया में 2 लाख इवेंट, 2 लाख मूवी और अवार्ड इवेंट, सीरियल फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उनके लिए स्पेशल, गुरु भाई नहीं लेकिन मेरे भाभी जी को मिलने 2 मिनट के लिए आया हूँ। थैंक यू सर।
प्लीज आपके बारे में। पहले तो हाय हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन एंड सॉरी गिर गया कुछ गिरा माइक वो है, कुछ नहीं आप हाय नमस्ते एंड सलाम टू एवरीवन एंड ये फैशन शो का जो गाड़ी मेरे को मिला, लाइक आई एम रियली वेरी लकी दैट परफेक्ट वुमेन मैगजीन वाले ने मेरे को चुना एंड दे हैड अ ट्रस्ट इन मी एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग वर्क फॉर मी बट स्टिल यू नो समहाउ यू नो लाइक आई मैनेज टू डू एंड द गर्ल्स वर रियली डूइंग वेरी गुड एंड यू नो लाइक विदाउट मिस्टेक्स यू कैन नॉट सक्सेस सो यू नो सम पीपल आर डूइंग मिस्टेक एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक। तो मैं यही आशा करूँगी कि जो भी लड़कियाँ पार्टिसिपेट किए दे शुड सक्सेस इन देयर लाइफ इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू। जो लड़कियाँ अलग अलग स्टेज से सिंगिंग से आती है तो नर्वस होती है तो उनको कैसे मैनेज करते हैं? स्टेज फियर हम लोग ऐसा हटाते हैं लेकिन बिफोर द शो उनको हम स्टेज पे लेके आते हैं और उनसे हम लोग टेक्निकल रिहर्सल कराते हैं। ओके एंड ऑफ कोर्स लाइक मैंने भी लाइक आई हैव डन मोर देन 500 शोज बट स्टिल हम लोग भी नर्वस हो जाते हैं कभी कभी। ओके सो वी मोटिवेट और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू नमस्ते टू एवरीवन। अंदर आएंगे आपके मिल जाएंगे? नहीं मैं यहाँ से स्वागत है यहाँ पर आप बड़ी इवेंट में आप शामिल हो जो वुमेन्स को डेडिकेटेड है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू टू डॉक्टर खुशी जो करता धरता है परफेक्ट वुमेन की मैगज़ीन की और उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ना ही सिर्फ इनवाइट किया तो मुझे एक अवार्ड भी दिया विच वॉज अ ग्रेट सरप्राइज। शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल और सबसे बड़ी बात डॉक्टर खुशी की ये है कि वो बहुत सपोर्टिव रही है। जिस तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म एक खड़ा किया है लड़कियों के लिए, टैलेंट के लिए, रॉ टैलेंट के लिए, बहुत बड़ी बात है और मैं वो टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई थी, उनके लिए आई थी, उनकी टीम के लिए आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी आज, डिग्नेटरीज, एक्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस एंड हूसोएवर, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नए साल की शुरुआत का जो कहते हैं कि इस तरीके से शुरुआत हो रही है, शायद ये आज नया साल ही होगा सारे उन लड़कियों के लिए जो इस परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज वन गर्ल इज़ गोइंग टू चेंज हर फेट टुनाइट एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा लॉट्स ऑफ लव। क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके अगर आ रहे हैं वो मैं अनाउंस नहीं करूँगी अभी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप दस्तक देने वाले भी मैम के स्टेज पर? हाँ, because it is high time, so definitely I am going to try my luck in different languages other than my own regional mother tongue, which is Marathi, and I want to take my mother tongue ahead, which is Marathi again. और मैं हूँ तो मराठी मुलगी फ्रॉम पुणे, बट हम में टैलेंट बहुत है और ये टैलेंट को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ एंड आई विश कि आप सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे बिकॉज मीडिया हैज़ बीन प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ, सो थैंक यू। रेजोल्यूशंस वगैरह क्या है आपके नए साल के, या क्या कुछ प्लान? सो रेजोल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, फ़िलहाल मेरी तो डायरी अभी तक भरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग और मैं बहुत सारा काम करना चाहती हूँ और हाँ शायद लेट्स सी, प्यार तो है नहीं भी है, बट आई वांट टू फॉल इन लव अगेन। बिग बॉस देखते हो? बिग बॉस देखते हो? हाँ जी। क्या लगता है वहाँ जाने से फायदा होता है उन लोगों को जो वहाँ पहुँचते जाते हैं? बिल्कुल
होता है, फ़ायदा होता है और ये गिव एंड टेक वाला मामला है. पर्सनली आई बीइंग ए ह्यूज फैन ऑफ सलमान खान सर और पता नहीं मैं भी शायद हो सकती हूँ वहाँ पे. हाँ मौका मिला था बट बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई ओन पर्सनल लाइफ तो मैं जा नहीं पाई. विवेक, करण, अविनाश या रजत कौन विनर हो सकता है? पता नहीं. एवरीवन इज प्लेइंग कूल एक्चुअली. एवरीवन इज प्लेइंग कूल. थैंक यू. क्या प्लान 31 के? थैंक यू सर. थैंक यू. सूर्या पकड़ा था सूर्या माइक कर वो बंद. एक लास्ट बार थैंक यू. बस हाँ अच्छा बोल रहा है सर. आइए सर आइए. Can I start? Hi everyone. Myself, I'm Snigdha and I'm from Hyderabad. Today I won the title winner for this Perfect Miss of India 2024. I'm so excited and happy and I did not expected this but it is a super today after getting this crown I'm feeling so proud and emotional and myself I just want to use this crown to be come forward strong and independent and here the experience is very good and today I'm here because of this support and my whole support system is my family because when I'm in ups and downs they are behind me, mostly my dad. He's so sensitive person. He looks strong but he's sensitive. My mother, she is very brave lady, so my sister is she is my fashion designer actually because she always guides me to do dress up and when I go out. So my family is super happy. I think I make them proud today and that's it. और खुशी मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले मैम ने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया, एजुकेशन लिया, उसके बाद जो है क्राउन लिया है. यही यूएसपी है परफेक्ट वुमेन का. जब हम परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां वुमेन स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सिंगल वुमेन बहुत सारे पेरेंट्स के दबाव इसलिए नहीं होते कि वो नहीं चाहते कि वो उनके बच्चे कुछ करें, लेकिन आज की तारीख में नहीं, मेरे ख्याल से पहले से ही एक रिवाज रहा है कि सोचना है कि नहीं बच्ची है मेरी, पहले वो पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हो जाए ताकि इन फ्यूचर पहले अपनी स्टडी की, उसके बाद में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद आज जब वो अपनी तरीके से फ्री हो चुकी है तो उन्होंने प्रेफर किया कि लेट्स स्टेप इनटू द ड्रीम जो वो बचपन से चाहती थी. कहीं ना कहीं जब हम पेजेंट्स में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो गाड़ी यहाँ आके अटक जाती है कि एज हो गई कि मैंने कुछ किया, तो मैं ये कहूँगी कि ये पॉसिबल ही नहीं था. मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ जो आज मेरे देव हैं. आज मैं अपने सभी जितने मेरी टीम है उन सबको श्रेय देना चाहूँगी, मैं परफेक्ट वुमेन की टीम को, परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया की टीम को, मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसकी वजह से ये शो दुनिया तक आवाज़ पहुँच रही है. मैं हमारे ब्राइट पार्टनर हैं जो योगेश लखानी जी जो हमारे होर्डिंग के लिए और यहाँ तक ये इवेंट को पावर्ड बाय पार्टनर हैं, उनको बधाई देना चाहूँगी, थैंक यू करना चाहूँगी. मैं के सरा प्रोडक्शन हाउस को थैंक यू करना चाहूँगी. मैं इंडियन फिल्म फैक्ट्री
भाई जो हैं उनको प्रोडक्शन के लिए उनका थैंक यू करूँगी कि वो हमारे कंटेस्टेंट्स को उन्होंने राह बताई उसके लिए। और यहाँ तक कि मेरे जितने गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, यहाँ पे कन्नू भाई जी हैं, श्री राधे फूड्स जो हमारे फूड एंड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स हैं, मुक्ति फाउंडेशंस में हूँ आज मैं, मुक्ति कल्चरल हब में हमारा इवेंट हो रहा है। मैं इन सब का दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिनकी वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल जो आप कह रहे हैं वो हुआ। खुशी में एक डैडी की सब फोटो सर आइए मम्मी रंदी एक मिनट भैया मम्मी पापा मैंने कहा सबसे बड़ा दुख तो वही है ना अपनों को खोने का, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे। बाकी की इस दुनिया में सब जितने लॉस हैं सब रिकवर हो जाएंगे, जितने फेलियर्स हैं सक्सेस में तब्दील हो जाएंगे। जो फेल हुए हैं या ये चीज़ आज नहीं हुई कल हो जाएगी। इसलिए अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने लिए जियो, सबसे अपनी खुद का नाम ऐसा रोशन करो कि दुनिया याद। आप आ जाओ, सोलो